Good morning, everybody. We are going to start our session within 2 minutes. Okay, so we will wait for 2 more minutes. So, good morning once again. So, in the previous session of that highway and transportation engineering subject, we are discussing about unit number 2, which is visible on your screen, right? So, unit number 2, the name of unit is Highway Development and Planning. So, the important thing is we are discussed about the various objectives of the highway planning and which kind of data you require for a highway planning. So I'm quickly rolling the slides so that you have a brief overview of previous session, right? So I hope that it is visible and I'm audible also, right? So objective of the highway planning, okay, there are basically four objectives of the highway planning. In brief, what we need to take care about, we need to take care about the data collection. Okay, so that the data you are collecting should be adequate amount. Okay, the sample you are collecting should be so the data you should have to collect should have a sufficient number of samples, and you require a quality data, right? So So in brief, the data you are collecting, you should require an adequate amount, and the data you are collecting with the proper systematic manner, right? Second thing that you need to take care about the cost. Okay, so the cost of the highway design that you are going to implement on the field. Okay, so cost factor is there. So in brief, you can simply see the B by C ratio, right? Further, it should be safe enough. The planning you are doing, okay. So you need to take care about the safety of the people as well as goods, okay, both. Further, we are further you can simply say that you need to whatever you planning for the highway, you need to predict for the future. Okay, so forecasting is a very important task that we have discussed in the previous session. So why we require a forecasting, why we are thinking about the future? Because in the future the vehicular growth is increasing, the urban area population is increasing, so that's why we need to take care about the future planning. Okay, so future planning of the highway, so the maintenance point of view, the widening of the road, so that you can have an idea only if you are thinking about the future while you are doing a highway planning, right?
So this is the four objectives. The data you required is the first and foremost thing, traffic data. We had already discussed all these 4 points in detail, right? So traffic data you required for the existing condition as well as for the future. Okay, you can predict the future traffic congestion level. Second thing, a demographic data. So in case of demographic data, you required a population, right? So the number of people living in a particular area. Okay, simply you can see the population density, right? So number of people living in a particular area, which is the, what is the unit of the area? Simple, you can simply say when you are talking about a big region, you should have a kilometer square, right? So population density, you can simply say that, let us say population density of 1 kilometer square is simply, you just mention your amount X, let us say. So that is an important factor while planning a highway. Another thing is environmental data, right? So environment point of view, the data you are collecting, the planning you are doing for the highway is very important. Other thing is road inventory data and condition survey. So basically you are evaluating the existing condition of the road network. Okay, if suppose if you are going for the planning, highway planning, you require to have a existing situation, right? So here what is written, road inventory means it can include the lane width, traffic signs, traffic sign height, and sign condition. So basically, in brief, existing condition of road, you can simply say a road inventory, right? So further, in today's session, we are going to discuss about the highway planning, right? So how the sorry, highway development, right? So the how the road network of India is developed. Okay, so the journey start from 1927. So everybody has to write down the topic name. You can simply say the highway development in India, and the journey starting from 1927, right? And we will discuss all the aspect of the highway development in India. Okay, then we will come to the 2000, simply you can say 2021, and also we will see the what are the future. Okay, so from, you can simply say 2035 or 2020, 2000, you can simply say 30, right? So what will be there, you can say simply, so highway development. Okay, so you need to write down the first topic of a highway development in India is we are starting our journey from 1927. Okay, so in 1927, one committee is set up for the highway development in India. The name of that committee is Jaikar Committee. Okay, because Jaikar is a name of the person, right? So he is heading that committee. That's why the committee name is Jaikar Committee. So what they have suggested for highway development in India. So here is the four brief points of that Jaikar Committee in 1927. ओके, सो आपको ये समझ में आ रहा है? अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, कौन बताएगा मुझे? Sir, highway planning in India. This is हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, राइट? तो हम एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि राइट फ्रॉम 1927 इंडिया में हाईवे डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, राइट? सो हम 1927 से स्टार्ट करेंगे, वो समझेंगे तभी तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन हम समझ पाएंगे, राइट? सो हम ये सीखने जा रहे हैं कि 1927 में क्या था। उस समय आप सोच सकते हैं कि हाईवे डेवलपमेंट करना कितना डिफिकल्ट रहा होगा, राइट? बिकॉज वी डोंट हैव ए डिजिटल एक्सेस, ओके, वी डोंट हैव ए डिजिटल सॉफ्टवेयर, डिजिटल, you can simply say the mobile or also are not digitalized. So in brief, you can say they are planning according to their mindset, right? And they have observed certain things. They have survey the various regions, and based on that, they have carried out 4 points. Okay. So simply, what I can ask in your exam that
write a short note on JICAR committee. What are their suggestions? Okay, so write a short note on the guidelines given by the JICAR committee, or you can say suggestions given by the JICAR committee. Okay, so number one thing, there is a, you can simply say 1927. Well, we are initializing the highway development. So there is a complete a blank slate, you can simply say. There is a number of roads are very less, you can simply say, right, as compared to today's scenario. So what they have done, they have given one first aim is why we require to develop a highway network. So they have suggested that road development should be made a national interest, since the local government do not have the financial and technical capacity of the road development. उन्होंने क्या बताया कि रोड डेवलपमेंट जो है उसका कार्य, जो वो काम है वो नेशनल इंटरेस्ट के तहत करना चाहिए, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी। आपको समझ में आ रहा है? नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि हमें अगर आगे बढ़ना है, हमें आगे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है, हमें रॉ मटेरियल जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी, ठीक है। रोड डेवलपमेंट शुड बी मेड अप एज ए नेशनल इंटरेस्ट। व्हाई? Because local government and local authorities do not have the financial capacity and technical capacity. आपको समझ में आ रहा है? उस समय 1927 में आप फाइनेंस की बात करें तो उतना पैसा था नहीं लोकल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कम थी, राइट, बिकॉज ऑफ द नो रोड नेटवर्क और હેલો वेरी સર माइनर रोड नेटवर्क इन द, यस સર હું એમ કહું છું કે સર પહેલાના ટાઈમમાં જે રોડ બનાવ્યા હતા ને બધા બનાવેલા રેડી, એ સર ત્યારના સમયમાં સર રોડમાં કઈ થાતું નહીં, કઈ વાંધો ન આવતો, ગમે સિમેન્ટ એ બધી જે વસ્તુ વાપરે અત્યારના સમયમાં સારા સારી સિમેન્ટ વાપરે તોય સર અત્યારના રોડમાં કા વાંધો આવી જાય? see the only difference is a poor quality control. સર પૈસા તો ઘણા Okay, બધા so that નાખે you તો need to, વસ્તુ કેમ yes, સારી નથી આવતી એમાં? હા, મેઇન રીઝન એ જ છે કે poor quality control, the material you are using, the way you are constructing the road. Okay, so the method is similar, but the quality is not maintained, that's why. Because we have a hi-fi facilities, we have digital, all the data is in digital format, you can simply say. Okay, you have a latest software, but the thing is that whenever you are whenever you are constructing a road, the quality of road is not maintained. That is the only reason. Okay, if the quality is maintained, because at that time in 1927 it is a reverse one. They don't have a digital softwares, but they have a good quality control on the field. Whenever they are going for the implementation of a road, okay, they are strict with that good quality road, right? So that is, in today's scenario it is reverse, that's why this is happening, right? So majority, you can simply say the quality is a very key factor during the construction of the highway, right? Right now what we are discussing is JICAR committee's guideline, right? तो उन्होंने पहले ये बताया कि ये जो रोड डेवलपमेंट का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लोकल गवर्नमेंट्स है, लोकल अथॉरिटीज है, उसके पास उतना फाइनेंस नहीं है कि वो 100 या 200 किलोमीटर का रोड बना सके, ठीक है, और उसके पास उतनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी भी नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे और वहां से हम फाइनेंस कहाँ से लेना है उसके हिसाब से हम सोचेंगे। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, यू शुड हैव टू write down the first point, okay, of the JICAR committee, what they have suggested, right? So you need to write down the first point. The highlighted keyword as a road development should be made as a national interest. આમાં એને ફોન કરી
એમાં નથી, એમાં ડિજિટલ એમાં નથી આવ્યું, ચડાવ્યું નથી આવ્યું, એટલે આ ફાઇનલ છે. જસ્ટ અ મિનિટ, જસ્ટ અ મિનિટ. Okay, so the first point is road development should be done by the central government, okay, because they are they have capable enough to raising the fund for the road network and technological capacity. They can enhance the technological capacity. अब फंड कहाँ से आएगा? ठीक है, रोड नेटवर्क तो बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, तो फंड कहाँ से आएगा? तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप क्या कीजिए कि लेवी एक्स्ट्रा टैक्स ऑन द पेट्रोल फ्रॉम द रोड यूजर टू क्रिएट ए रोड डेवलपमेंट फंड. उन्होंने क्या सजेस्ट किया? सो अगर आपको रोड नेटवर्क बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया जयकर कमेटी ने कि आप पेट्रोल की प्राइस पर टैक्स लगाइए और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे आप रोड नेटवर्क को बनाइए. उन्होंने ये सजेशन दिया, ठीक है. तो क्योंकि आप रोड का यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो आप रोड यूजर हुए तो रोड यूजर से टैक्स आप कलेक्ट कीजिए और उसका फंड आप एक जगह पे इकट्ठा कीजिए और उसको रोड नेटवर्क डेवलप करने में यूज कीजिए. समझ में आई बात? राइट. सो फंड कहां से आएगा वो हमें पता चल गया, ठीक है. ये फाइनेंस की बात हो गई. अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हम सोचे कि टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक और सजेशन दिया कि आपको क्या करना होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट को ये गाइडलाइंस दी कि टू एस्टैब्लिश ए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू पुल द टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड टू एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी. कि गवर्नमेंट को ये गाइडलाइन दिया कि आप एक एडवाइजरी बॉडी बनाइए, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाइए जो रोड नेटवर्क और रोड डेवलपमेंट और डिजाइन में टेक्निकली साउंड हो और आइडियाज, नए नए इनोवेशंस जो है वो कलेक्ट करके एक गाइडलाइंस फॉर्म करे और वो सभी को एडवाइस दे. ठीक है, एडवाइजरी बॉडी बनाइए. ये टेक्नोलॉजी वाला जो है टेक्निकल कैपेसिटी वो भी एनहांस का काम करने के लिए उन्होंने ये पॉइंट दिया. और apart from that, one important thing is to create a national level institute to carry research. right? एक एडवाइजरी बॉडी आप बनाइए और एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश कीजिए जो हाईवे के बारे में रिसर्च करेगी और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेगी और वर्क्स करेंगी. ठीक है, डेवलपमेंट वर्क्स और कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी. ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो जयकर कमेटी ने सुझाव दिए. तो आपको क्या लिखना है मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ. ये चारों पॉइंट आपको याद तो रखना ही है, ठीक है, लेकिन हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? द नेशनल इंटरेस्ट इज द वेरी फर्स्ट हाईलाइटेड वर्ड. एक्स्ट्रा टैक्स ऑन द पेट्रोल. ओके, फंड के लिए हमें टैक्स जो है वो देना पड़ेगा पेट्रोल पे. ठीक है, देन वन एडवाइजरी बॉडी. ओके, and finally a national level institution. आपको ये सारा लिंक में होगा. ठीक है, क्योंकि 1927 में गाइडलाइन जो दिया उस गाइडलाइन के हिसाब से अब आगे का फेज में डेवलपमेंट स्टार्ट होगा. अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे बताइएगा. ठीक है, right. So majority you are aware about the guidelines and highlighted points of the Jaikar committee. ठीक है, इसमें कोई डाउट है? क्या 4 चीजें बोलने के लिए कहा गया आपको? आप मुझे कौन बताएगा? मुझे उमेश
कुमार आप आ गए हैं। उमेश कुमार आप बताइए। यस सर। आप बताइए। जयकर कमिटी जो है, आपको ये याद रखना है सारी चीज। हाँ, मैं पूछूंगा एग्जाम में। जयकर कमिटी ने क्या सुझाव दिया? आपको पता नहीं है क्या चल रहा है क्लास में? ये पहले बताइए। आप नहीं हो क्लास में कि फोन रख के सर चले अभी गए? हम घर हाँ, अभी हम घर पे आए हुए हैं सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम है तो। ओके। करण कुमार चौधरी यस सर। आप बताइए। इनका समराइज कर दीजिए आप इस स्लाइड का। सर 1927 में यही सर हुआ है कि जैसे कि रोड हम लोग को बनाने के लिए क्या हम लोग कहाँ से फंड आएगा, हम्म। तो सेंट्रल ने यही सुझाव दिया कि पेट्रोल सेंट्रल से ने नहीं, आप। ये कमिटी जो थी, हाँ सेंट्रल। ये जयकर कमेटी थी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप ऐसा कीजिए, तभी हमारा रोड नेटवर्क बन पाएगा। हाँ सर। हाँ, अब आगे। तो यही सुझाव दिया कि आप पेट्रोल से टैक्स लीजिए और आप रोड नेटवर्क का डेवलपमेंट कीजिए। हाँ, दूसरा। आपको सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने हैं, जहां पे आपको मैंने हाईलाइट किया है वही याद रखने हैं। ये सर। तो आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आपका क्लास में ध्यान नहीं था इसलिए, है ना? सर था। हाँ, तो आप बता नहीं पा रहे हैं इसलिए मैंने आपको कह रहा हूँ। कुसाई। यस सर। શું કહેવા માંગે છે કેટલી? हेलो हाँ। हेलो। यस यस, ऑडिबल। यस सर। समराइज दिस स्लाइड। ના ખબર હોય તો ના પાડી દો, એટલે આપણે આગળ વધીએ. તો આપણે કશું કામ નથી. हेलो। છોડો, ચાલો છોડો. हाँ, राजकुमार वैष्णव। राजकुमार वैष्णव છે? સર કહું? હા, હવે આમાં ઓપ્શન કઈ બચ્યો નથી. જે લોકો ખરેખર ના ઈચ્છા હોય એ જતા રહ્યા મીટિંગ લીવ કરીને. But at least you should have to answer, I am removing, because आपके इसी बिहेवियर की वजह से आप फेल होते हो, तो इसी बिहेवियर की वजह से आप फेल होंगे.
आपको मैं रिमूव कर, जिस चीज को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्विकली। ओके, आभास कुमार, क्योंकि हमें क्या है कि यस आप सर। अपनी लैंग्वेज में, यस जस्ट ए मिनट, जैसे कि मैंने आभास कुमार को पूछा, ठीक है, तो जो हिंदी वाले हैं वो समझ जाएंगे क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज है। तो अगर मैंने गुजराती वाले को पूछा तो जो गुजराती वाला है वो बताएगा तो गुजराती वाले समझेंगे, ठीक है, आपका रिवाइजन हो जाएगा यहीं पे ही, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस आभास। हाँ सर, फर्स्टली कैन से हाँ जायकर कमेटी बता। ने सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्टली वी कैन से जायकर कमेटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सुझाव दिया कि फर्स्टली हमें तो एक रोड डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास इतना फाइनेंस नहीं है कि वो रोड डेवलप कर सके। हाँ तो राइट फिर राइट उन्होंने राइट। एक और सुझाव दिया कि आपको ये फाइनेंस आएगा कहाँ से, तो आपको टैक्स करना पड़ेगा, जो भी ये पेट्रोलियम वगैरह है उस पर आपको टैक्स कलेक्ट करके हमें रोड को डेवलप करना पड़ेगा। फिर वो यस सुझाव आएंगे कहाँ से, तो उसके लिए हमें एक एडवाइजरी बॉडी डेवलप करना पड़ेगा, उसमें हमें नए नए आइडिया मिलेंगे। राइट। फिर उसके लिए हमें एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट यस डेवलप करना पड़ेगा, जो रिसर्च वगैरह करके हमें कुछ सुझाव दे सके। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। यस, इतना सिंपल है। राइट राइट, इतना सिंपल है, आपको यही बताना था, ठीक है। तो ये जो सुझाव दिए उसकी वजह से 1934, 1934 हमारा क्या था, ये वाला थर्ड वाला, ठीक है, कि आपको एक सेमी ऑफिशियल एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी जो एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी। तो इसी सुझाव की बदौलत हमने 1934 में एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश की जिसका नाम है इंडियन रोड कांग्रेस। आपको बात समझ में आ रही है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट third suggestion by the Jaikar committee in 1927, we have a one advisory body. You can simply say that name of that body is Indian Road Congress, IRC, 1934। तो ये हमने एस्टेब्लिश किया एडवाइजरी बोर्ड के रूप, और उसका काम हमने डिफाइन हो गया कि आपको ये करना है, ठीक है। तो जयकर कमेटी ने जो बताया उसका काम जो है आगे बढ़ता गया। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है उसकी बदौलत हमें क्या मिला, इंडियन रोड कांग्रेस। समझ में आया? ये आपको शॉर्ट फॉर्म सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो आईआरसी जो है, फिर उनको हमने बता दिया कि आपका काम ये रहेगा। तो इंडियन रोड कांग्रेस जब हम 1934 में एस्टेब्लिश हुआ तो उनके काम क्या थे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द आईआरसी? So very first function you can simply say to provide a national forum for regular pooling of experience and ideas on matters related to the construction and maintenance of the highway। तो पहला काम यह था इंडियन रोड कांग्रेस का कि आप जो है ना एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म दीजिए जहां पे जो भी हाईवे के फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, जो मेंटेनेंस कर रहे हैं हाईवे का, उनको आप बताइए और उसके एक्सपीरियंस के आधार पर, उनके आइडिया के आधार पर जो है आप एक मैनुअल और एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर कीजिए, राइट। तो एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म आप देंगे जहां पे जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो अपने आइडियाज, अपने सुझाव दे सकता है, ठीक है। तो आईआरसी का पहला काम यह है कि वो रेगुलर इंटरवल पे सेमिनार और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगा, और वहां पे अलग अलग फील्ड जो है, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं अपने आइडियाज शेयर करेंगे, और उसके आधार पर based on that experience and based on their ideas shared by the experienced person, the Indian Road Congress will recommend a standard specifications, okay, and further IRC will provide a platform for expression of professional opinion on the matters relating to the roads and road transport,
राइट। आईआरसी का फंक्शन क्या है कि वो तो पहले एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, राइट। विल प्रोवाइड ए नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म और फोरम ऑन विच explain construction and maintenance on that platform, right? And based on that seminars, based on their workshops, Indian Rail Congress will recommend a standard specification, right? तो आईआरसी एक गाइडलाइन देंगी जो सारे कंट्री में, हमारे नेशनल लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेगी। यस और नो, आपको समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपको पूछूं एग्जाम में कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द आईआरसी, तो आपको ये 3 पॉइंट जो है वो इलेबोरेट करने होंगे। अब कौन बताएगा? आनंद जोशी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो पवन। सर, फर्स्ट स्लाइड एक बार हाँ और समझाइए ना। हाँ फर्स्ट फिर से समझाइए ना। टू प्रोवाइड फर्स्ट वाला, हाँ ये एक नेशनल लेवल का आप सेमिनार मान के चलिए, ठीक है। फोरम क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है, नेशनल लेवल का एक प्लेटफॉर्म देंगे, ठीक है। वहां पे अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे जो हाईवे के फील्ड में काम करते होंगे, और वहां वहां पे अपना एक्सपीरियंस और आइडिया शेयर करेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर, सेकंड वन। पहले, हाँ पहले क्या होता था, कोई सेमिनार कोई वर्कशॉप ही नहीं होगा तो एक दूसरे का आइडिया कैसे शेयर कर पाएंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेस पे। तो एक हमें आइडियाज चाहिए होंगे कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो वो आईआरसी प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म। यस सर। समझ में आ रही है हमें? फर्दर आनंद? यस सर। હા તો આ બે કનેક્ટેડ છે, તમને ખબર પડી? 1927 માં જે થર્ડ યસ સર. તમને આપ્યો સજેશન, હા એની લીધે આપણે આઈઆરસી એસ્ટાબ્લિશ થયું। હા, ઓકે, એના લીધે કમિટી સો ઊભી થઈ આખી. હા હા, ચલો હવે સમજાવો જે શું છે તમારા માટે હાઇલાઇટેડ વર્ડ હું કરી દઉં હા છું બધાને। એટલે સર આમાં સર એમાં એમ કહેવા માંગે કે સર આપણે કે પહેલાના ટાઈમમાં સર આવી રીતે બધા કોઈ પબ્લિક એન્જિનિયર કે કોઈ ભેગા ન થઈ શકતા, એટલે કોઈનો સલાહ યસ મશવરા લે એટલે સલાહ મશવરા લે ને સર, એટલે એના કારણે એને એમ આગળ નવું જાણવા મળે, એટલે કઈક સારી ક્વોલિટીનો કે સારા પ્રમાણે આપણે નવી ટેકનોલોજીનો મીન્સ કે આમ આવે આપણી પાસે, એવી રીતે એમ કહેવા માંગે છે। રાઈટ, અને બીજો પોઈન્ટ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ સ્પેસિફિકેશન સર, તમે ક્યારે આઈઆરસી નો કોડ જોયો છે કે? હા સર જોયો છે સર। ખબર છે? એમાં હા ગાઈડલાઇન્સ સર। હોય બધું કે આટલા આટલા મીટરની વિડ્થ રાખવી, આ બધા પ્રકારના સ્પેસિફિકેશન્સ હોય। તો એ હા કોણ સર પ્રોવાઈડ એટલે કરે છે? इंडियन रोड कांग्रेस प्रोवाइड करे છે। क्लियर? ओके अब सर। संतोष आप बताइए अपने हिसाब से। यस सर। हाँ आप बताइए। ऐसा ये जायका कमेटी जो बोला था कि थर्ड पॉइंट से कि एक एडवाइजरी बॉडी होना चाहिए सर, यस यस तो राइट। सेम उसी के आधार पे सर ये इन्होंने आईआरसी जो है सर, इंडियन रोड कांग्रेस जो है सर 1934 में जो है सर, इन्होंने एक राइट राइट प्लेटफॉर्म शुरू किया कि जिसपे कि जिनको एक्सपीरियंस है, राइट जिनको रोड के बारे में अच्छी जानकारी हो, वो इस फील्ड में काम करता हो, वो इस फॉर्म में यानी कि इस सेमिनार में आकर के अपना सुझाव दे, ताकि रोड अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बने। राइट राइट। और उस और सर सेमिनार के आधार पर क्या होगा? कि वो डेवलपमेंट होगा, हमारे इंडिया का जो वो डेवलपमेंट होगा उनके आधार पर, उनके सुझाव के आधार पे सर, जो यस। इस फील्ड में वर्क करते हैं सर। राइट राइट। तो अगर आप कहीं पे भी फंस रहे हो तो एक रूल है, ठीक है, आप किसी की हेल्प ले लो। तो आप हेल्प ऐसे व्यक्ति की लेंगे जिसको मालूम है, राइट। सो सिमिलरली उन्होंने भी ये किया कि आईआरसी को बोला कि आप है ना एक काम कीजिए, जितने भी ये हाईवे इंजीनियर्स है ना हमारे कंट्री में, उनको बुलाइए और एक जगह पे इकट्ठा कीजिए, और उनसे एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर आप आइडियाज लीजिए और एक पेज पे लिखते जाइए, पेपर पे लिखते जाइए, ऑन पेपर लिखिए, राइट। तो उस कोड का नाम देते जाइए, मान लीजिए IRC 1, IRC 20, IRC 67, ठीक है। तो IRC 67 है तो उसके उसके बेसिस पे वहां पे गाइडलाइंस होंगे,
दिख रहा है? सो वो सारा जो एक्सपीरियंस था उनको हम पेपर पे लेके आए, ताकि हमें जब भी रिफर करना हो तब हम आसानी से पेपर में से, वो कोड में से देख के हम स्पेसिफाई कर सके, राइट? अब आगे जो है, जो ये फोर्थ वाला है, राइट, तो ये फोर्थ है, ओके। 1927 में जो फोर्थ सुझाव दिया था, सजेशन दिया था, ठीक है। सो टू क्रिएट ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स एंड द कंसल्टेशन, तो उसके बेसिस पे हमने एक और बॉडी बनाई, जिसका नाम है, आपको यह लिखना है अपने क्लास नोट में, CRRI, ओके। सो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज भी आपको याद रखनी है कि ये फंक्शन क्या है उनका, CRRI का। तो बेस्ड ऑन द फोर्थ suggestion by the Jaikar Committee in 1927, right, we have established another body, which is, you can simply say, the CRRI, right? So basically it is comes under the CSIR, okay. You can simply say, when it is called CSIR, CRRI, okay. uh, so we need to remember these functions of this. First of all, just write down the full form of that. ओके। सो ये CRRI जो है वो 1952 में, 1952 में एस्टेब्लिश हुई। अब आप ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और क्यों इतना हमें टाइम लग रहा है, आपको ऑब्जर्व हुआ, आपने ऑब्जर्व किया कुछ कि 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है रूल था, ठीक है। तो उसने एक कमेटी बिठाई थी, उसके आधार पर हमने इंडियन रोड कांग्रेस बनाया, और 1947 में हमारा जो देश है वो आजाद हुआ। तो उसका सेटलमेंट का जो पीरियड था, हम आजाद हुए तो हमने कुछ फॉर्म किया, कुछ इधर से उधर हुआ, हाँ, रूलिंग जो है शिफ्टिंग हुआ, उसकी वजह से इतना टाइम लग गया। आप देखिए सुझाव कब दिया गया था, 1927 में। एस्टेब्लिश हमने कब कर पाए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राइट। तो ये टाइम लगता है, ठीक है। अब जो है आपको, यस, ये मैं आपको CSIR का भी फुल फॉर्म बता देता हूं, ठीक है। आपको ये लिख लीजिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जब भी आप CRRI सर्च करें नेट पे या फिर कहीं पे भी, या फिर आपको फंक्शन जानना हो, ठीक है, तो वो किसके अंडर में आता है? एक हमारा काउंसिल है, ठीक है। काउंसिल, दैट मीन्स यू कैन सिंपली से द a body, you can simply, right? So council of scientific and industrial research, right, उसके अंडर में ये आता है, ठीक है, CRRI। और आप इनकी वेबसाइट भी देख सकते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। सो बेसिकली आप देखेंगे कि वो क्या करेगा, उनको भी हमने एक टास्क दे दिया, भाई आप इतना काम कीजिए। तो हमारे पास कितनी बॉडी आ गई? 2 बॉडीज आ गई हमारे पास। एक इंडियन रोड कांग्रेस है, जो हमें पेपर में लिख के बताएगी कि आपको ये करना है, ठीक है, वो गाइडलाइन देती जाएगी। दूसरा जो है, हमने एक सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएगा, जिसका काम यही रहता है कि आप जो है ना, कि एक कंसल्टेंसी चलाइए। कंसल्टेंसी इन सेंस कि आप जहां जहां प्रॉब्लम होता है वहां पे उसको सोल्व करने की ट्राई कीजिए, और डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी एस्पेक्ट है वो उसको आप कवर करके आप गाइडलाइंस प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। गाइडलाइंस इन सेंस वो अलग अलग फील्ड में आप एक्सपर्टाइज जो है उनको, उनके बेसिस पे आप जो है टेक्निकल, ये जो है आपको फोर्थ पॉइंट है, रिसर्च कीजिए, ठीक है। आप रिसर्च कीजिए ताकि आप दोनों मिलके एक अच्छा रोड नेटवर्क बना पाए, ठीक है। सो व्हाट आर देयर फंक्शंस? सो कैरिंग आउट द रिसर्च वर्क एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो रिसर्च करेगा और प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। उसके बाद दे आर टेकिंग केयर ऑफ द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड along with the traffic and transportation planning, right, along with the traffic and transportation planning.
तो CRRI जो है उसका काम ये रहेगा कि वो रोड की डिजाइन कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन आपको कैसे करना है और मेंटेनेंस आपको कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग के प्लानिंग जो है वो CRRI देंगी। उसके रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट्स है वो CRRI प्रोवाइड करेंगी। वो पहले कौन से सिटीज, जो मेगा सिटीज है, मीडियम सिटीज है, ठीक है, और पूरा जो रोड नेटवर्क है उसका मैनेजमेंट है वो CRRI करेगी। कि वो डिसाइड करेंगे कि हमारे कंट्री में पहला रोड हम कैसे बनाएंगे। लेटर से हम दिल्ली और कोलकाता को ज्वाइन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि वो हमारे टू बेसिक इकोनॉमिकल हब है, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करेंगे, फिर मुंबई और बेंगलोर को कनेक्ट करेंगे। तो ऐसा मिलके हम नेटवर्क बनाएंगे। और ये सारे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट का काम कौन करेगी? ये बॉडी, CRRI बॉडी मैनेज करेगी। उसका डिजाइन कैसे होगा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, ठीक है, कौन से सिटी पे पहले रोड बनाएंगे, वो सारा काम जो है वो CRRI करेगी, राइट। सो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स and traffic and transportation planning of the mega and medium cities and the management of the road network in the different terrain. Right? Terrain means you can simply say the region, right? Another thing is वो रिसर्च कर रही है, तो रिसर्च करते करके उनको जैसे जैसे मालूम पड़ेगा उसके हिसाब से वो मेंटेनेंस और मैनेज करती जाएगी। सो उन्होंने एक ऐसे फील्ड पे भी काम कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द रोड कंस्ट्रक्शन। आपने सुना होगा, अगर जो हमने पहले आपको एक बताया था, वो इज द प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो इसके तहत काम करते हैं कि वो प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसमें से रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वो किसकी गाइडलाइंस के आधार पे काम कर रहे हैं? सेंट्रल रोड रिसर्च के गाइडलाइंस और उनके तहत काम कर रहे हैं, ठीक है। देन लैंडस्लाइड कंट्रोल, अभी अभी आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, राइट, कि एक ग्लेशियर जो है, ओके, और जो हमारा जो हमने ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया उसको हम वो ग्लेशियर जो है वो फॉल हुआ, उसकी वजह से ये डैमेज हुआ, राइट, डिजास्टर इज वाज देयर। तो लैंडस्लाइड कंट्रोल भी करेंगे, जहां जहां लैंडस्लाइड जो होती है वहां पे साइट्स आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पे सजेशंस देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर टेकिंग केयर अबाउट द ग्राउंड इंप्रूवमेंट, राइट, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओके, रोड ट्रैफिक सेफ्टी and service life assessment of the road, highways and railways and bridges. Rehabilitation, that means you can say maintenance point of view, you are taking care of the highways and railway bridges, right? So in brief, if you do the website of that CRRI and IRC, you will find the majority of the all the guidelines and service sectors. So let us go there to have an idea. पहले हम CRRI का देख लेते हैं। ये आपको भी सर्च करके फाइंड करना है, ठीक है। Yes. So this is, you can say, the website of that CRRI, and you will find the different areas and different guidelines there, right? So basically it comes under the Central Road Research Institute, a Council for Scientific and Industrial Research. Okay, basic function of that CRRI is research and development, R&D, right? ये रिसर्च करेगा, तो रिसर्च जो है कौन से फील्ड में करेगा? ब्रिज engineering and structure, right? Geotechnical engineering, flexibility, pavement evaluation, rigid pavement, traffic engineering and safety, transportation planning and environment। तो ये उनके अलग अलग एरियाज है जहाँ पे वो रिसर्च करती है, ठीक है। और आप अलग अलग न्यूज जो है इसमें देख सकते हैं,
करंट न्यूज में आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। और अबाउट में जाके भी आप वहां पे समझ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टर कौन है, उसका जो फंक्शन है, कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो उनके ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट, दिख रहा है। सो उनका मिशन क्या है आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, जो मैंने स्लाइड में आपको इंडिकेट किया, आप ये भी पढ़ सकते हैं, ओके। और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रोवाइड करता है एग्जैक्टली, ठीक है, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा हम एक और इंडियन रोड कांग्रेस है, उनकी भी वेबसाइट है। इंडियन रोड कांग्रेस में जाएंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ आपको वहां पे दिखेगा, दिख रहा है। तो वहां पे भी न्यूज और हाइलाइट्स, लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक, न्यू इनिशिएटिव्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यस, आप उनका भी ओरिजिन जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे आपको जो है धीरे 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 यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और अलग अलग टैब में आप जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, सारी चीजें जो है वहां पे आपको दिखेगी, ठीक है, ठीक है। पब्लिकेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, बिकॉज आईआरसी का काम क्या रहेगा, कोड जो है वो अलग अलग कोड जो है वो पब्लिश करना, राइट। और सीआरआरआई का काम क्या रहेगा, रिसर्च करना। समझ में आ रही है बात। आप दोनों, ये वेबसाइट है, मैं आपको ये चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है, ये दोनों वेबसाइट को आपको रिफर करना है, ठीक है। ये पहली वाली हो गई, और आईआरसी जो है वो क्लियर। ये दोनों की वेबसाइट आपको मैंने दिखाई, उसमें से आप पढ़ सकते हैं और क्या लेटेस्ट क्या हो रहा है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम वापस पीपीटी की ओर चलते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है, या सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं आपको अगर सीक्यू में पूछूं कि सीआरआई का एस्टेब्लिशमेंट कौन से साल में हुआ, तो आपका आंसर रहेगा 1952, राइट। फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछ लूं कि आईआरसी का एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ, 1934। मुझे ये बताइए जयकर कमेटी एस्टेब्लिश कब हुई, 1927, राइट। सो ये आपको याद रखना है। ये समझ में आ गए। नेक्स्ट इज ओके, ये जो थर्ड पॉइंट है उसके बेसिस पे ही हमने एक मिनिट्री बनाई, राइट, कि जिसके अंदर जो है सारा रोड नेटवर्क जो है वो आपको आपको कहाँ पे और कितना कंस्ट्रक्ट हुआ है वो आपको मिल जाएंगे। बिकॉज वी रिक्वायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ओके, सेमी ऑफिशियल, राइट। तो ये सेमी ऑफिशियल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मंत्रालय हमारा जो है, ठीक है। तो उस मंत्रालय का नाम क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिनिस्ट्री, राइट, सिंपली यू कैन से मिनिस्ट्री। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MORTH, राइट। तो मोर्थ इसे कहते हैं शॉर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, राइट। तो उनकी फंक्शंस क्या रहेगी, पैरेलल टू द सीआरआरआई, राइट। तो वो क्या करेगी, मिनिस्ट्री ये जो एग्जीक्यूट काम हो रहा है, ठीक है, उसको वो कंट्रोल करेगी, कंट्रोल इन सेंस के उसका वो मॉनिटरिंग करेंगी, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो मोर्थ करेगी, राइट। तो कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर वो सीआरआर ने रिसर्च का और उन्होंने कुछ सुझाव दिया तो वो इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं वो चेक कौन करेगा, तो वो मोर्थ जो है उसका फंक्शन है। तो हम उसके फंक्शन समझ ले रहे हैं।
So basically there are three functions of the MORTH, right? So MORTH will take care about the planning, development and maintenance of the national highways in the country, right? So कोई भी नेशनल हाईवे अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, उसका प्लानिंग कहाँ पे होगा? MORTH, MORTH, राइट? और मेंटेनेंस कौन करेगा? ये मिनिस्ट्री, हमारा जो मंत्रालय है, ठीक है, रोड डेवलपमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मंत्रालय है वो मैनेज करेगा. Another thing is extend the technical and financial support. जो दो एस्पेक्ट में हम पिछड़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना फाइनेंस नहीं था, उतनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं थी, ये अब मोर्थ जो है उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि आप बताइए कि कितना फंड रिक्वायर्ड है, उतना हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है. आप बताइए कहाँ पे आप रुक रहे हैं, कहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, तो वो टेक्निकल सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करेगा मोर्थ स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है. तो बेसिकली इनका काम क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन का काम हुआ. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो मोर्थ करेगा. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट रोड्स and roads of the interstate connectivity based on the economic importance. मोर्थ ये काम करेगा कि वो पहले आइडेंटिफाई करेगा कि सारे भारत में से ऐसे कौन से स्टेट है जिनको जोड़ना आवश्यक है रोड से, ठीक है, जिनको नेशनल हाईवे से जोड़ना आवश्यक है. तो उन्होंने ये आइडिया ये कलेक्ट किया और उसके हिसाब से नेटवर्क जो है वो बनाना स्टार्ट किया धीरे धीरे. कौन से दो राज्यों को सबसे पहले जोड़ा जाए, राइट? और उसका प्लानिंग, उसका डेवलपमेंट, उसका मेंटेनेंस जो है वो मोर्थ, सिर्फ नेशनल हाईवे, दूसरे नहीं, ठीक है. तो नेशनल हाईवे जो भी है वो मोर्थ के अंडर आते हैं, ठीक है. तो अगर आप मोर्थ की वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां पे भी सभी सिर्फ नेशनल हाईवे के बारे में ही जानकारी आपको मिलेंगी, ठीक है. देन sometimes they are providing the standard specification for road and bridges in the country, ठीक है. रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो है उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेंगे. तो ये तीनों फंक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है. तो अगर हम आप मोर्थ जो बताए, ठीक है, तो मैं आपको ये एक दिखाता हूँ वेबसाइट, उसमें से आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज आ गए. ओके, तो उसमें आप क्लिक करेंगे, ठीक है. तो अब आपको मालूम पड़ा कि ये जो है ओनली नेशनल हाईवे के बारे में बात करता है, ठीक है. यहाँ पे आपको नई जानकारी मिलती जाएंगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, वो कौन से मिनिस्टर हैंडल करते हैं, ठीक है. और सारी चीजें जो है आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है. हाईवेज है, अबाउट हाईवेज, नेशनल हाईवे डिटेल्स, लैंड एक्विजिशन, फाइनेंशियल सेक्शंस, राइट. देखो हर एक टैब में आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेंगी. ग्रीन हाईवेज, राइट. देन अबाउट, आप वहां से आप समझ सकते हैं कौन से डिवीजन से. अबाउट आप जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको उनके बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता चलेगा, ठीक है. समझ में आ रही है बात आपको? रोड सेफ्टी, नेशनल रोड सेफ्टी की पॉलिसीज क्या है, प्रेजेंटेशंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है. रोड एक्सीडेंट्स डैशबोर्ड भी मिलेगा. ये इट इज इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है. तो आपको ये जानना जरूरी है आपके लिए. पब्लिकेशंस उन्होंने कौन से किए हैं, ठीक है. एक्ट्स एंड रूल्स, ठीक है. ये मोटर व्हीकल एक्ट जो है 1988, ठीक है, उसके तहत आपको पनिशमेंट दी जाती है. कभी भी आप सिग्नल भंग करते हो, ठीक है, सिग्नल आपने का पालन नहीं किया तो उसके तहत आपको दंड
कितना है वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं समरी ऑफ द एक्सीडेंट्स एंड डेथ ट्रेंड ओवरऑल। तो आपको यहाँ से ये हमारा 2018 के बेस पे आपको ये मैप यहाँ पे मिल गया कि कौन से राज्य में आपको रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो भी रेड है वो वहां पे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, राइट। सो दैट इज, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएंगे, ये ग्राफ्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। फिर तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये मिनिस्ट्री है हमारी, ये CRRI, और बिफोर इंडिपेंडेंस हमने IRC एस्टेब्लिश कर दी थी, ठीक है। आगे का जो है हमारी जर्नी जो है स्टार्ट होगी 1943 से, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, आपको समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं। नो सर, क्लियर। क्लियर। आपको खुद से भी वो वेबसाइट देखनी है, ठीक है। मैंने जो आपको इंडिकेट किया, आपको ये वेबसाइट भी देखनी है। तीसरा मैं आपको टास्क ये भी दे रहा हूँ कि आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज की, जो उसको मोर्थ कहते हैं, ठीक है, MORTH, वो भी आपको रिफर करनी है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया चला कि अभी क्या चल रहा है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक जो है उन्होंने एक अच्छा वर्ड यूज किया था, यहाँ पे फ्रंट में आप देख पाएंगे। तो लेट्स हैव ए रिफ्रेश दैट सो यू विल हैव आइडिया। जैसे हमने मोर्थ सर्च किया, उन्होंने एक अच्छा सा वर्ड जो है आपको दिया था, भारत वो माला। क्या है आपको वो मालूम करना है। हाँ, यस, दैट भारत माला, व्हाट इज दैट भारत माला, राइट। सो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी सारी, ठीक है। यस, दिस इज भारत माला, राइट। तो ये भारत माला क्या है, अभी क्या चल रहा है, वो अभी का है, ठीक है। तो ये भी आप वहां से मिल जाएगा, ठीक है। आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, मैंने जो स्लाइड आपको दिया है वो मैंने ब्रीफ दिया है। आप डिटेल में इंफॉर्मेशन वो सारी वेबसाइट पे से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप आज एकेडमिक आवर खत्म होने के बाद वो तीनों की वेबसाइट एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए आप देख लेना, ठीक है। आप तीनों के लिए आधा घंटा उसका टाइम स्पेंड करके एक बार रेफर कर लेना, क्योंकि अभी आपका जो है ये फ्रेश है, ठीक है। मैंने जो आपको बताया वो फ्रेश है, वो आपको तुरंत जो है आपको माइंड में समझ में आ जाएगा। आप रोल नंबर लिख दीजिए और आप लीव कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, आप लीव कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। સર એકાદ બે વીકમાં કોલ હા, થઈ જશે ચાલુ? તમને કહેશું, હા, મોસ્ટ પ્રોબેબલી જે છે આપણે સોમવારથી આ 15 સોમવારથી? ફેબ્રુઆરી ઓકે સર. કહેશું, તમને મેસેજ કરશું, રાઈટ। હા સર. लीव द मीटिंग प्लीज, अंकित कुमार मिश्रा।